Hello everyone. So today we'll start the new chapter, Women, Caste and Reforms. Let's begin the chapter. Chapter 7, Women, Caste and Reforms. Let's begin. Points to focus. Social oppression of Indian women, prevalence of sati and child marriage, gender inequality and widowhood, efforts to abolish sati, social reformers advocating for women's rights, promotion of women's education, challenges faced by Muslim women, reforms against caste system, role of B.R. Ambedkar in uplifting depressed classes, and reform movement promoting gender and caste equality. फॉर सेंचुरीज इंडियन वेमेन जो थे दे वर सबॉर्डिनेटेड टू मेन, उनको उनसे नीचे माना जाता था. बहुत से जो मेन थे दे क्लेम कि विमेन्स की प्लेस जो है वो घर के अंदर है, उनका रोल है दैट ऑफ अ डॉटर, वाइफ एंड मदर. शी वॉज रेवर्ड एज लॉन्ग एज शी डिड नॉट लीव द थ्रेशोल्ड ऑफ हर हाउस. विमेन पावर को वॉज वर्शिप्ड एज शक्ति माना जाता था एंड मेन वर इंस्ट्रूमेंटल इन ऑर्गेनाइजिंग पूजास फॉर दुर्गा, काली, अन्नपूर्णा. बट शी वॉज नॉट ट्रीटेड, लेकिन उनको एक इंडिविजुअल नहीं माना जाता था. हैविंग उनके भी कुछ सपने, उनके भी कुछ एम्बिशंस होंगे, उनकी डिजायर्स होंगी, पर्सनालिटी नहीं. तो उनको कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करना पड़ता था मेन, फादर, ब्रदर, हस्बैंड या न्यूमरस अदर मेड रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग. 18th सेंचुरी में एक नंबर ऑफ सोशल इविल्स एग्जिस्ट करते थे इंडिया के अंदर. मिजरेबल कंडीशन ऑफ वुमेन, कास्ट हायरार्की, माल प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी. कुछ ऐसे वर्स्ट प्रैक्टिसेस थी जो इंडियन सोसाइटी में प्रिवेलेंट थी. लाइफ ऑफ अ गर्ल, स्टैंडर्ड्स जो डिफरेंट थे मैन एंड वुमेन के लिए. डे शी वाज बोर्न ए गर्ल, उसको एक पराया धन की तरह ट्रीट करते थे या किसी और की वेल्थ. एक मैन, हिंदू और मुस्लिम, कुड हैव मोर देन वन वाइफ. अगर ये वाइफ मर जाती थी उनकी तो he could remarry, but a Hindu widower did not have to immolate himself with his wife's body. उसको अपनी वाइफ की बॉडी के साथ जलने की जरूरत नहीं होती. लाइक इन केस ऑफ सती, he could inherit property, inherit कर सकता है, move around freely and he could be educated. On the other hand, a girl was married as a child. If she lost her husband, so she remained a widow for the rest of the life. She has no right to remarry. उसे restricted life जीनी पड़ती थी. She was ostracized during weddings and festivals as a bad omen. कि वो एक she's a widower, so she has to remain at home or she's to remain somewhere else outside the functions which are going on related to any good things happened in the home. उनको हटाया जाता था. Horrifying practice sati ki prevailed in many parts of India. She had neither the right to inherit property nor to end an unhappy marriage. Muslim women were scheduled inside a parda and was a victim of easy divorce. Neither of them had access to education. They were taught from the birth to be subordinate to man and treated as its honor. Position of Indian women in society during the medieval period and early modern period, जो status था women का बहुत ही low था. Several evil practices like child marriage, sati, female infanticide, further system, polygamy, ये सब practice होता था largely. Women were denied opportunities to acquire knowledge, property and social status. तो ये issues needed to be addressed. 19th century was in a very many ways also age of women as efforts were made for the upliftment of status of women. Educational institutions women के लिए were specially open. Polygamy was looked down in the society. सती एंड चाइल्ड मैरिज बैंड थे. विडोरी मैरिज लीगलाइज थी. फीमेल इंफेंटिसाइड्स भी प्रोहिबिट किया गया बाय लॉ. बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स की वजह से ही लेटर ऑन वुमेन की पार्टिसिपेट किया उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन में, मूवमेंट और बहुत से अदर एक्टिविटीज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. The prevailing evils against women. There were many evils जो सफर करती थी from women. Some of them were सती. 19th century में very common और सबसे inhuman custom था that of सती. Women को जरूरत था required to burn themselves on the funeral pyre of their husband. Women who did it willingly, उनको sacred माना जाता था and they were revered as सती. Those who objected, they were forcibly pushed onto burning pyre. और ये जो inhuman practice थी that was tried to be glorified. प्रैक्टिस ऑफ सती मोर प्रेसिडेंट थी इन बंगाल. 1928 में मोर देन 450 इंसिडेंट्स जो थे सती के वो रिकॉर्ड किए गए एंड ब्रिटिश डिड नॉट इंटरफेयर. इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करते थे क्योंकि वो उसको एक रिलीजियस मैटर मानते थे. चाइल्ड मैरिज. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट गर्ल्स को इन्वेडर से प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज ऑफन प्रेफर्ड कि मैरी करते थे गर्ल्स को बहुत ही यंग एज में. द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज डिनाइड गर्ल चिल्ड्रन टू हैव प्लेजर्स ऑफ चाइल्डहुड. ऑफन गर्ल्स जो मैरिड कर दी जाती थी टू मच ओल्डर मैन, बहुत बड़े आदमी के साथ, विडोड एट एन अर्ली एज, तो दे कुड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी की फॉर मेंटल डेवलपमेंट उनका हो ही नहीं पाता था. सेकेंडली दे वुड बिकम मदर्स. बहुत ही छोटी एज में वो मदर बन जाती थी. दैट वाज आल्सो वेरी हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर चाइल्ड.
मैनी सोशल रिफॉर्मर्स एडवोकेटेड एबॉलिशन किया गया चाइल्ड मैरिज का। ड्यू टू देयर इमेंस एफर्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट पास करा एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में। वो डिटरमाइन करता है कि एज जो है मैरिज की 12 ईयर्स। ऑर्थोडॉक्स इंडियंस एंड सम इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने प्रोटेस्ट किया कि वो कंसिडर कर सकते हैं कि डेलिब्रेट ब्रिटिश अटेम्प्ट कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं इंडियन रिलीजन और सोशल कस्टम्स। 1929 में एक दूसरा एक्ट पास हुआ, छात्रा एक्ट या फिर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट। वो पास हुआ कि रेज मैरिजेबल एज जो गर्ल्स की होनी चाहिए 14 और बॉय की 18। विडोहुड, अर्ली मैरिज और दैट टू विद मेन ऑफ मच ओल्डर एज। इससे क्या होता था, जल्दी विडो हो जाती थी। विडोहुड कंसिडर होता था इनऑस्पिशियस। विडोज को व्हाइट क्लॉथ्स पहनने को कहा जाता था, अपने बाल दे वर शेव्ड, हेयर्स वर शेव्ड, ईटिंग उनको कुछ ही पर्टिकुलर फूड दिया जाता था खाने के लिए। उनको परमिट नहीं था कि वो रिलीजियस सेरेमनीज में आए क्योंकि उनकी प्रेजेंस को बैड ओमेन माना जाता था, अशुभ माना जाता था। उनको अलाउ नहीं था वो रीमैरी करे, इस कंडीशन से एस्केप भी नहीं कर सकती थी। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ने आर्ग्यू करा कि हमारा रिलीजन परमिट नहीं करता विडोज रीमैरी करे या वर्ल्ड के प्लेजर एंजॉय करे। अदर इवल प्रैक्टिसेस जैसे पॉलीगैमी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डाउरी, पर्दा सिस्टम, कोई राइट टू प्रॉपर्टी बैलेंस नहीं। Role of social reformers. Social reformers of 19th century, they were concerned about issues of women and wanted to improve their position. उन्हें फेल्ट हुआ कि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का पॉसिबल नहीं है अनलेस सोशल अट्रॉसिटीज जो है के अगेंस्ट वो खत्म नहीं होती। कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करा टू द कॉज ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, स्वामी दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान एंड दादा भाई नारोजी, amongst many others. Raja Ram Mohan Roy 1772-1833 was called father of modern India. वो एक अच्छे स्कॉलर थे, वेल वर्स्ड इन पर्शियन थे, संस्कृत एंड इंग्लिश। पायनियर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, चैंपियन द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ही पायनियर द ब्रह्मो समाज को। वो अगेंस्ट थे प्रैक्टिस ऑफ सती के और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट इट डिस्पाइट फेसिंग अपोजिशन फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू। उनके एफर्ट्स ने रिसीव किया सपोर्ट फ्रॉम लॉर्ड विलियम बेंटिक जो तब के गवर्नर थे जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने एक लॉ पास किया डिसंबर 4 1829 में कि प्रैक्टिस सती को इलीगल बनाया और पनिशेबल बनाया गया बाय लॉ। राजा राम मोहन रॉय ने डिमांड करा कि इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स होने चाहिए वुमेन के। पॉलीगैमी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उन्होंने एक्सटेंड किया हेल्प टू द पीपल, जिन्होंने स्कूल्स ओपन करे, कॉलेजेस ओपन करे, एनकरेज करा वुमेन को कि वो मॉडर्न एजुकेशन रिसीव करे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने सपोर्ट करा कॉज ऑफ विडो रीमैरिज। उन्होंने पब्लिश करा बुक को हिंदू विडो मैरिज इन 1855। उनके एफर्ट्स प्राइवेटल थे, पासिंग ऑफ हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। वो उसको सिंगल ग्रेटेस्ट गुड डीड कहते थे अपनी लाइफ टाइम। बेगम रुकैया सखावत हुसैन, बेगम रुकैया 1880 से 1832, उन्होंने एक स्कूल ओपन करा फॉर मुस्लिम गर्ल्स नोन एज सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, कोलकाता 1911। शी रोट मैनी आर्टिकल्स, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, नॉवेल्स लिखी, वुमेन की कंडीशन जो इंडिया में थी। अपने एक लेक्चर में उन्होंने बोला था कि आई हैव बीन क्राइंग फॉर द लोएस्ट क्रिएचर इन इंडिया लास्ट 20 ईयर्स के लिए। डू यू नो हु दैट लॉयलेस्ट क्रिएचर इन इंडिया इज? कौन है? इज द इंडियन वुमेन, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंडर ऑफ जो आर्य समाज उन्होंने फाउंड किया था, उन्होंने इंप्रूवमेंट्स के लिए कि पोजीशन ऑफ वुमेन को इंडिया की सोसाइटी के अंदर इंप्रूव किया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, अपोज करा ट्रेडिशन ऑफ सती एंड स्ट्रांगली प्रमोटेड विडो रिमैरिज। विडो रिमैरिज को प्रमोट किया। ही ओपनड मेनी स्कूल्स which imparted modern education and Indian culture। उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी ओपन करे जिसमें मॉडर्न एजुकेशन वुमेन को दी जाती थी। सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान बिलीव्ड कि वुमेन को एजुकेट करना चाहिए ताकि वो सोशल लेवल्स को और अच्छे से पता लग सके और उनको हटा सके। उन्होंने अर्ज किया मुस्लिम्स को कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करें। established Muhammad Anglo Oriental College in Aligarh in 1875. It was one of the first university साउथ एशिया में। वो बिलीव करते थे कि साइंटिफिक एंड लॉजिक बेस्ड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है ताकि सोशल लेवल्स को सोसाइटी में से हटाया जा सके। यूनिवर्सिटी लेटर उनका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी एक लीडिंग रिफॉर्मर था पेरिस पारसीज के। उनके एफर्ट्स ने इम्प्रूव किया वुमेन की पोजीशन, स्पेशली मैटर्स जैसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वाला केस में, जैसे वुमेन का राइट अब सबको मिलने लगा है। नॉलेज कॉर्नर, दादा भाई नारोजी फर्स्ट इंडियन थे इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1992, नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने हाईलाइट किया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन
इंडिया एंड को फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने मैथमेटिक्स और फिलोसफी पढ़ाई, इंस्पायरिंग मैनी इन इंडिया फाइट फॉर इंडिया। कंदुकूरी वीर सालंगम पंटुलू। कंदुकूरी वीर सलिंगम पंटुलू एक फादर ऑफ तेलुगु विमेन्स मूवमेंट नाम से जाने गए। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। उन्होंने सत्यवती चरित्रन लिखा था ताकि वो इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन को हाईलाइट करें, बिल्डिंग अ हैप्पी होम। अनदर बुक में ब्रह्मा विवाहम, उन्होंने ही मेड अ फन ऑफ कस्टम ऑफ ओल्ड मैन मैरिंग यंग गर्ल। उन्होंने एक मूवमेंट की मैरिज ऑफ चाइल्ड विडोज की एंड कैंपेन फॉर वुमेन्स एजुकेशन। अदर रिफॉर्मर्स थे केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर एंड स्वामी विवेकानंद फ्रॉम बंगाल इन महाराष्ट्र, गोपाल हरि देश पांडे हेल्प किया उन्होंने फाउंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन, लाइक परमहंस मंडाली इन मुंबई जिसने वर्क किया फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने स्टार्ट किया स्कूल्स इन पुणे फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट। Another prominent social reformer from Maharashtra was Pandit Ramabai. With the support of Justice Ranade and R.G. Bhandarkar, उन्होंने फाउंड किया आर्य महिला समाज एंड शारदा सदन, a facility to house the widow and school girls of Mumbai. पंडित रामाबाई ने एफर्ट किया ताकि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू वुमेन। शी वाज गिवन द टाइटल ऑफ पंडिता, वो बहुत ही लर्न थी। वेदा समाज एस्टैब्लिश हुआ मद्रास में बाय सिद्धारालू नायडू एंड केशव चंद्र सेन। 18 सपोर्टेड विडो मैरिज को सपोर्ट किया। कंदुकूरी वीर सलिंगम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, उन्होंने राजमुंद्री एसोसिएशन स्टार्ट किया जिसने वर्क किया अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए, बिलीव्ड इन जेंडर इक्वालिटी। कास्ट सिस्टम एक मेजर सोशल इविल रहा इंडिया में। ऑप्रेसिव कंडीशंस, मिनाल ऑक्यूपेशन ऑफ लोअर कास्ट, ग्रेट डिसयूनिटी को उसने क्रिएट करा अमंग द पीपल। शूद्रास दे वर बैंड फ्रॉम यूजिंग पब्लिक प्लेसेस जैसे कि टेम्पल, स्कूल, वेल, इवन रिवर्स भी इनको अलाउड नहीं था कि वो हाथ लगाए। उनको अनटचेबल्स मानते थे। जो लोग हर कास्ट से बिलोंग करते थे वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे ओवरसीज as they feared losing the purity of their caste. So caste system prevented people from developing a feeling of brotherhood. Caste system attacked by the Brahmo Samaj, Pratna Samaj, Arya Samaj, Ramakrishna Mission and Theosophical Society. ब्रह्मो समाज, अब राजा राम मोहन रॉय ने कंडेम करा ऑपरेशन ऑफ द लोअर कास्ट बाय अपर। लोअर कास्ट जो अपर कास्ट था, इसको चीजों को खत्म करने की कोशिश करी। वो चाहते थे लोगों को कि समझें कि स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या है, तो ताकि वो अपने आप को इस मीनिंगलेस रिचुअल्स जो है रिलीजन को लेके, किसी भी चीज को लेके, कास्ट को लेके, इसको खत्म कर सके। देयरफॉर उनको विलय वेदास उपनिषद ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली। उन्होंने एस्टैब्लिश करा ब्रह्मो समाज 1828 में, एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल वर्शिप। अब उनकी डेथ के बाद समाज और मूवमेंट आगे कौन जिसने चलाया? रविंद्रनाथ टैगोर। ओवर अ डिकेड ईयर लेटर केशव चंद्र सेन ने ज्वाइन किया। 2 decades लेटर ब्रह्मो समाज स्प्लिट हुआ 2 में, विद केशव लीडिंग द यंगर रिफॉर्मिस्ट ग्रुप, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ये ग्रुप ने ले किया ग्रेट एम्फेसिस ऑन फीमेल इमेंसिपेशन, फीमेल एजुकेशन एंड टोटल एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। स्वामी विवेकानंद थे डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। मिशन एस्टैब्लिश हुआ ताकि वो स्प्रेड करे मैसेज ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने एक्सप्लेन करा कि कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड द कास्ट सिस्टम एंड दैट इट वाज अ सोशल नॉट रिलीजियस सिस्टम। उन्होंने स्ट्रेस करा ह्यूमैनिज्म में, डूइंग सर्विस टू मैनकाइंड। अकॉर्डिंग टू हिम कोई भी रिलीजन जो है स्पोक ऑफ अनटचेबल। जस्टिस रानडे एंड डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। प्रार्थना समाज फाउंड बाय जस्टिस रानडे एंड डॉक्टर रामकृष्ण जी भंडारकर, जो ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे बाय द ब्रह्मो समाज। वो अपोज थे टू द अथॉरिटेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू प्रीस्ट। उन्होंने एम्फसाइज किया कि जितने भी गॉड्स हैं दे वर वन एंड स्ट्रेस्ड ऑन द यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। जस्टिस रानडे की वाइफ पंडिता रामाबाई, उन्होंने वर्क को कंटिन्यू रखा। ज्योतिबा फूले। सरदार गोपाल हरि देशमुख एक सोशल वर्कर, अपोज द कास्ट सिस्टम एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पिटिबल स्टेट ऑफ हिंदू विडोज। उन्होंने एक सेशंस जज एंड रोड बहुत सारे आर्टिकल्स भी उन्होंने लिखे। उनका मेन नेम था सोशल रिफॉर्म। अब ज्योतिबा फूले ने स्ट्रेस किया कि जो लोअर कास्ट के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, इल ट्रीटमेंट होता है वेमेन के साथ, ये बहुत बड़े इविल सोशल इविल्स हैं। उन्होंने मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा। उनकी बुक थी गुलामगिरी, स्लेवरी जिसे कहते हैं। ये पब्लिश की गई 1872 में। उसने एक स्कूल ओपन करा नॉन ब्राह्मण गर्ल्स के लिए 1848। उन्होंने सेट करा सत्य शोधक समाज 1873 में, जिस वर्क करा टू लिबरेट द प्रेस क्लास। नारायण गुरु बॉर्न थे, पैदा हुए केरला 1854 में एट द एजावा कम्युनिटी।
जिनको कंसिडर करा गया अनटचेबल बाय द अपर कास्ट। वो बिलीव करते थे एक ही कास्ट में, एक ही रिलीजन में, एक ही भगवान में, सब ह्यूमन बींग। और ये जो कंसेप्ट था वो पॉपुलराइज हुआ श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, उन्होंने फाउंड किया। उन्होंने स्टैब्लिश करे थे टेम्पल्स जिसमें कोई इमेजेस नहीं थी गॉड्स की, गॉडेसेस की। उन्होंने प्रोग्रेस ऑफ अप्रेस क्लासेस के लिए, स्पेशली इजावास के लिए। ईवी रामस्वामी पेरियर, ईवी रामस्वामी वाज अ प्रोमिनेंट फिगर थे कॉज ऑफ डाउन ट्रोडन या लो कास्ट। उन्होंने डोमिनेशन, जो ब्राह्मण्स के डोमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया, क्रिटिसाइज किया हिंदू स्क्रिप्चर्स को ओपनली, एनकरेज करा लोअर कास्ट को कि वो अपने आप को फ्री करें इस तरह की अंधविश्वास से, ऑफ रिलीजन, ताकि वो सोशल इक्वालिटी उन्हें मिल सके। उन्हें एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी जो है स्टैब्लिश करी ताकि वो दलित के राइट्स के लिए लड़ सके, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स थ्रू रिजर्वेशन पॉलिसी। इससे रिजल्ट हुआ वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ लोअर कास्ट। फिर आए हमारे बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए थे 14 अप्रैल 1891 को हाउ। वो बिलोंग करते थे महार कास्ट से और एज अ चाइल्ड उनको टॉलरेट करना पड़ा बहुत सारा इनजस्टिस। जब वो स्टूडेंट थे उनको बाहर बिठाया जाता था क्लास से और अलाउड नहीं था कि वो पानी तक पिए उसी टाइप से जिससे अपर कास्ट के लोग पीते। तो उन्हें अनटचेबिलिटी को खत्म करना था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, जो एक्सप्लॉयटेशन अनटचेबल्स के साथ होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकर्मी सभा या डिप्रेस क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन बनाई 1924 में बॉम्बे के अंदर, मॉरल और मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ अनटचेबल्स। उन्होंने पब्लिश करे बहुत से जर्नल्स को ताकि अपना मैसेज सोशल रिफॉर्म्स का दे सके। रिफ्यूज किया कि वो ट्रेडिशनल कास्ट ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेंगे। इस एम को अचीव करने के लिए उन्होंने एक ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन ऑर्गेनाइज। उन्होंने नंबर ऑफ कैंपेन्स चलाए कि राइट्स ऑफ अनटचेबल्स को एंटर कर सके, टेम्पल में आने से कोई नहीं रोकेगा, पानी पीने से कोई नहीं रोकेगा। टेम्पल एंट्री मूवमेंट लॉन्च हुई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने करी 1930 में कालाराम टेम्पल में। नासिक दूसरा लैंडमार्क था स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट्स एंड। बाबा साहेब वंस एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट थे तो उनको पकड़ा गया जब वो खाना खा रहे थे लाइब्रेरी इन लंदन। जब लाइब्रेरियन ने डराया उनको कि वो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे तो उनकी मेंबरशिप को उन्होंने अपोलोजाइज करा और एडमिट करा कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कैफेटेरिया में खाना होता है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो यहाँ खा रहे हैं। ये सुनने के बाद लाइब्रेरियन ने बोला फ्रॉम टुमारो यू आप ज्वाइन करोगे एट द कैफेटेरिया में मेरे साथ एंड मैं अपना खाना आपके साथ शेयर करूंगी। और आज हमें पता है कि ये जो यंग स्टूडेंट है आज भीमराव रामजी अम्बेडकर, he grew up to become a jurist बने, इकोनॉमिस्ट बने, पॉलिटिशियन बने और सोशल रिफॉर्मर बने। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कैंपेनिंग अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन के में लगा दी, दलित्स के अगेंस्ट, एंड सपोर्ट किया राइट्स ऑफ वुमेन। वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, बनाया था उन्होंने हमारा संविधान। उन्होंने स्टैब्लिश करा समाज समानता संघ ताकि वो प्रोपोवेट करें इनइक्वालिटी बिटवीन अपर और लोअर कास्ट दलित्स। उन्होंने डिग्री ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट को इंजेक्ट किया टू डिप्रेस क्लासेस एंड ब्रॉट देम इनटू द नेशनल मूवमेंट में लेके आए। ही बिलीव कि ओनली एजुकेशन ही उनको हेल्प कर सकती है इंप्रूव करने में उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन। उन्होंने स्टैब्लिश करा डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी, बहुत सारे स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले ताकि एजुकेशन को वो प्रमोट कर सके। 1930 में वो पॉलिटिक्स में एंटर हुए, डिप्रेस क्लासेस को नेशनल मूवमेंट में लेके आए अगेंस्ट ब्रिटिश ब्रदर लीडर्स के साथ लाइक बाबू जगजीवन राम। उन्होंने एनकरेज करा इन लोगों को कि वो फाइट करें अगेंस्ट इनजस्टिस टू देम। उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, डिमांडेड स्ट्रांगली पॉलिसीज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउनट्रोडन। Let's value social reform and progress came from challenging unjust traditions and advocating for equality. और ये chapter teaches us to stand against discrimination, fight for the rights of marginalized groups and work towards a more inclusive and compassionate society. जहाँ everyone regardless of gender or caste को treat किया जाता है with dignity and let's remember, Indian women faced social repression for centuries and they were considered inferior to men, restricted to household rules. 18th century में social evils like child marriage, sati, polygamy, untouchability widely practiced हुए. A girl's life was highly restricted. She was denied education, property rights, and visiting remarriage with widows. Practice of sati forced women to burn themselves on their husband's funeral pyre and was glorified. Child marriage denied girls the opportunity for mental, physical development, बहुत सारे becoming young widows. Social reformers like Rajaram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, they worked here to abolish sati and promote widow remarriage. Begum Ruqayya Sakhawat Hussain, she fought for Muslim women's education, opening schools, advocating their upliftment. Swami Dayanand Saraswati and Syed Ahmed Khan promoted women's education and fought against the caste system.
B.R. Ambedkar worked to end untouchability, improve the condition of depressed classes, and secure their rights. Reform movements like Brahmo Samaj, Arya Samaj, Satya Shodhak Samaj, उनका aim था abolish करना caste distinctions and promote equality for women. Assessment corner, multiple choice question. What was the age of marriage for girls set by the Sharda Act of 1929? 14. Which social reformer was known as father of Telugu women's movement? Kandukuri Varsalingam. Begum Ruqayya Sakhawat Hussain is best known for her contribution to Muslim education. Which reformer started a movement to oppose the caste system and untouchability? Narayana Guru. Which reformer published the book Hindu Widow Marriage in 1855? Ishwar Chand Vidyasagar. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again. We'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.